Hello students, this is unit 13, Principles of Adult Learning. So in this unit we'll discuss the adult learning theory, which is known as andragogy, Knowles' 5 assumptions, as principles of andragogy, application of andragogy in training, methods in adult training, techniques in adult training, choosing the appropriate technique, and what are the different factors affecting adult training, and creating and maintaining positive learning environment. So the adult learning theory, which is known as andragogy. So Malcolm Shepard Knowles, इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1913 से 1997 का। ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे और इन्होंने सबसे पहले एडल्ट एजुकेशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था एंड्रेगोजी। तो अकॉर्डिंग टू हिम it is art and science of adult training. Like in the unit 1 we have already discussed teaching is an art. So teaching to an adult person is again an art and science. So it refers to any form of adult learning. So andragogy की बात करें तो it may be in the classroom, it may not be in the classroom, it may be for a year, it may be for a week, but any kind of adult training is known as andragogy. इनके 5 assumptions क्या थे adult learner के लिए वो देखते हैं। तो 1980 में नॉलेज ने 4 assumptions दिए थे जिन्हें हम कह सकते हैं characteristics of adult learner भी, और ये 1984 में, अब adult learner और child learner में अंतर होता है, तो अकॉर्डिंगली कुछ जो assumptions थे वो, और इनका 5वां assumption हमारे पास आया 1984 में। जो हमारा पहला assumption था नॉलेज का, इन्होंने कहा था सेल्फ कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, जो एडल्ट लर्नर्स हैं इनके खुद के कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये खुद से डायरेक्टेड होते, सेल्फ डायरेक्टेड। जब आपको स्कूल बचपन में मम्मी पापा छोड़ने गए थे, द थिंग वाज डिफरेंट। उन्होंने आपको केजी में एडमिशन दिलाया, उसके बाद कॉलेज में भी आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करने में दे वर हेल्पिंग यू, टीचर्स वर हेल्पिंग यू अकॉर्डिंगली। बट व्हेन यू ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, यू आर वर्किंग समवेयर, द सिचुएशन इज डिफरेंट। एक बार ग्रेजुएट होने के बाद आप खुद डिसाइड करते हैं, ग्रेजुएट एक अडल्ट खुद डिसाइड करता है कि वो अपना करियर पाथ किस ओर ले जाना चाहता है। इनफैक्ट जिस करियर में वो करेंटली है, जो वर्क प्रोफाइल में, जिस प्रोफेशन में वो करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। तो the adult learner is self-directed. They have their own concept. And similarly, second is experience. Yes, adult learner के पास experience होगा, life का experience होगा, जॉब का एक्सपीरियंस होगा, उनकी अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी। अब एग्जिस्टिंग नॉलेज को आगे कैसे बढ़ाना है, या उस डायरेक्शन में या दूसरे किसी डायरेक्शन में जाना है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। नाउ द थर्ड इज readiness to learn. For in case of pedagogy, आप लर्नर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं टू learn something new. But in case of like adult learners, so they have to be in that particular role. उन्हें खुद से ही अपने अंदर वो eagerness पैदा करनी होगी, वो खुद सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। फोर्थ इज ओरिएंटेशन टू लर्निंग। उनके पास कारण होना चाहिए वो क्यों सीख रहे हैं, है ना। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कोई आईटी फर्म में है, द न्यू ट्रेंड इज डेटा एंड बिग डेटा एंड सो ऑन। सो टू बी ऑन द सेम ट्रैक, टू बी इन, टू सर्वाइव इन द कंपनी, so the orientation should be there. And fifth is, which was added in the last in 1984, is motivation to learn. Motivation to learn is, this is intrinsic factor, ये internal है। why do they want to learn? adult जो ऑलरेडी अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन, अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, why do they need to learn? उन्हें क्यों सीखना है? when they are settled in their life, वो क्यों सीखना चाहते हैं? why they want to acquire new knowledge? So that motivation is completely internal, this is intrinsic. So this is again, in this slide I have explained what I explained in the earlier slide. Same, the 5 assumption of knowledge. And now we'll discuss the 4 principle of andragogy. So what are these 4 principles? Number 1,
adult need to be involved in the planning and evaluation of their instruction. Adult trainers pedagogy में जो evaluation है, जो planning है, वो उसमें completely teacher रहता है. Teacher design करता है syllabus, teacher ही उस syllabus के हिसाब से उसको उस syllabus को analyze करता है, accordingly instructional material ready करता है. So pedagogy is different thing. But adult education में क्या है, that adult trainees they need to be a part of planning and evaluation process. वो चाहते हैं कि उनके according चीजें चले, उन्हें control चाहिए होता है ना. So for sake of that control उन्हें planning and evaluation में, instruction में they want to get involved in that. Number 2 is experience. उनके पास already एक्सपीरियंस रहता है, तो जो लर्निंग एक्टिविटीज है वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे रहती है. जो अगर हम पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में बच्चों के पास, बच्चे हैं ना, कितना एक्सपीरियंस होगा, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं होता इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स. तो लर्निंग एक्टिविटीज कैन बी प्लान्ड बाय द टीचर, बट इन केस ऑफ अडल्ट लर्नर, सो द लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स. एक अगर आप ऑलरेडी किसी, मान लीजिए जो ऑलरेडी आईटी फर्म्स में काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए कोई ट्रेनिंग होगी तो उनकी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस होंगी, है ना. So adults are most interested in learning subjects that have immediate relevance and impact to their job or personal life. Obviously adults हैं, they have their own experiences. उनका अपना एक ओरिएंटेशन होगा. वो जब सीखने आएंगे कोई चीज तो उनका टारगेट क्या होगा कि जो वो सीख रहे हैं वो इमीडिएटली उसको यूज कर सके. अब जैसे हम बचपन में जो कुछ सीखते हैं वो हम इमीडिएटली यूज नहीं करते हैं, हम फ्यूचर में अपने लाइफ में अपने जॉब में कभी जा करके उसको यूज करते हैं. बट इन केस ऑफ अडल्ट लर्नर्स दे वांट टू यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इमीडिएटली. तो अडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड. जैसे अभी हम बात करें आप सीआईटीएस ट्रेनीज हैं, तो आपके साथ हम कौन से प्रिंसिपल्स लगाते हैं, पेडागोजी प्रिंसिपल्स लगाते हैं. ये कंटेंट ओरिएंटेड है. लेकिन अगर हम एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं तो दिस इज प्रॉब्लम सेंटर्ड. किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कुछ सीखने आया है. सो एडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड. Now we will talk about application of andragogy in training. So there is a need to explain reason specific things are being taught. देखो adults को पढ़ाने में क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, what is the reason behind using this particular tool or doing some activity. That reason should be there and instruction should be task oriented. Instruction जो है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लिखाना, पढ़ाना, मेमोराइज कराना, वी आर लाइक दिस. पर अगर हम एडल्ट ट्रेनिंग्स की बात करते हैं तो इट शुड बी टास्क ओरिएंटेड. द मोर प्रैक्टिकल वर्क शुड बी देयर, एक्टिविटी शुड बी देयर, एंड दैट इज related to the particular context we are doing. So number 3 is instruction should take into account the wide range of different background of learner, learning material and activities should allow for different levels. देखिए अगर adult training की बात करते हैं तो हो सकता है एक particular training में different background के learners हो. अब हर adult का अलग अलग experience है, उनके levels अलग है, उनकी कह सकते हैं किसी को कंप्यूटर्स आते हैं, किसी को नहीं आते हैं. तो मटेरियल जो है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एक्टिविटी वो ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ देम शुड फॉलो देम, वो फॉलो कर सके उसको, है ना. तो नंबर 4 इज सिंस एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड, इंस्ट्रक्शन शुड अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर थिंग्स एंड नॉलेज फॉर देमसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन पीपल. तो एडल्ट ट्रेनिंग में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं कि कंटेंट दे दिया और आपने सिखा दिया. एडल्ट ट्रेनिंग में जो सिखाने का तरीका होता है नॉर्मली ऐसा होता है कि लर्नर्स खुद से आंसर्स ढूंढे. यू जस्ट सपोज टू पुट द प्रॉब्लम एंड विद देयर ओन एक्सपीरियंस दे शुड फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, है ना. सो लर्नर्स शुड बी ऑफर्ड गाइडेंस. उन्हें पूरा क्लास लेक्चर ये नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड गाइडेंस. व्हेन मिस्टेक्स आर मेड दे आर एक्सपीरियंस एनफ, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, वो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. पर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो they just need a guidance to remove that errors, remove that mistakes. So methods in adult training, कौन सा मेथड्स हम एडल्ट ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं. नंबर 1 इज पार्टिसिपेटरी मेथड.
पार्टिसिपेटरी मेथड का ही मतलब ही यही है कि इसमें लर्नर और ट्रेनर दोनों का इंटरैक्शन हो, दोनों पर्टिकुलर मेथड में पार्टिसिपेट करें। नंबर 2 इज ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या है, ट्रेनीज जो है वो खुद ही टास्क करेंगे और अकॉर्डिंगली जो सीखना है वो खुद से करके सीखेंगे। नंबर सी इज इंटरोगेटिव मेथड। इंटरोगेटिव मेथड में हेल्पिंग लर्नर्स टू डिस्कवर व्हाट द इंस्ट्रक्टर वांट टू टीच। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के मेथड से काम होता है। एक्टिव मेथड, इसमें एक्टिविटीज ज्यादा होती है। एक्सप्लोरेशन एंड एप्लीकेशन मेथड। एक्सप्लोरेशन एंड एप्लीकेशन मेथड में जो सोल्यूशन है और जो सिखाना है वो बाय एप्लीकेशन, इस प्रोसेस के थ्रू ज्यादा से ज्यादा उस नॉलेज को जो सिखानी है उसके एप्लीकेशन के थ्रू सिखाया जाता है। सो द यूज ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टीचिंग कंटेंट एंड द टीचिंग सिचुएशन एंड द ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ये जो कोई भी मेथड है, इसमें से जो भी मेथड हम अप्लाई करते हैं ये डिपेंड करता है हम सिखाना क्या चाहते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर सिखाएंगे तो एक्टिव मेथड, एप्लीकेशन मेथड, इससे काम बनेगा। अगर आप कोई सोशल इशू पे सिखा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी मेथड से भी काम चल सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो ग्रुप ऑफ लर्नर है वो कैसा है, आपकी टीचिंग सिचुएशंस क्या है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट वेबिनार्स, तो वेबिनार्स भी क्या है, टू एक्वायर मोर नॉलेज, है ना। लेकिन उसमें मेथड कैसा है, उसे मेथड पार्टिसिपेटरी है। सो इट डिपेंड्स कि ग्रुप ऑफ लर्नर्स कौन है, कौन पढ़ रहा है और टीचिंग सिचुएशन कैसी है, तब आप अकॉर्डिंगली मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो टेक्निक्स कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग टेक्निक्स क्या है। अब मेथड और टेक्निक में अंतर है। मेथड्स तरीके हैं और उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करने को हम टेक्निक्स कहते हैं। सो ट्रेनिंग टेक्निक सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन, उस वो मेथड्स का सपोर्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स है। तो टेक्निक नंबर 1 इज एनरिच्ड प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, है ना, जिससे आपके लर्नर्स ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सके। नंबर 2 इज क्वेश्चन एंड आंसर, मींस डिस्कशन। डिस्कशन शुड बी देयर। कंटेंट तो अच्छा हो, आपकी प्रेजेंटेशन तो पावरफुल हो ही, अदर देन दैट क्वेश्चन आंसर सेशन शुड बी देयर। डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि डिस्कशन ही बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स आप उन्हें दें, दे फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू। सो वर्किंग इन ग्रुप्स, जो टीम वर्क है वो होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लोग हैं। व्हेन दे विल बी टुगेदर, वो अच्छा काम कर पाएंगे, वो ज्यादा सीख पाएंगे। और जब लर्निंग ग्रुप्स बनते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत नई चीजें सीखते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास है, कुछ किसी और के पास है, लेकिन जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वी आर पुटिंग ऑल द एक्सपीरियंस टुगेदर। तो जो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं भी किया है, स्टिल विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर दे कैन लर्न दैट थिंग। तो केस स्टडीज is a very good technique for adult learning. Role play and interviewing specialists, these are the good techniques for adult training. Now choosing the appropriate technique, अब इनमें से आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, अकॉर्डिंगली आप टेक्निक यूज करेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, लर्निंग कंटेक्स्ट, संदर्भ क्या है उसका। प्रिफर्ड लर्निंग मेथड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, आपका जो ग्रुप है लर्नर्स का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बैकग्राउंड के हैं, प्लस उनका आप उनका लर्निंग मेथड क्या है, अकॉर्डिंगली आप टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेनर्स की स्किल, दैट मैटर्स, है ना, हर कोई हर चीज में गुड नहीं होता ना। सो इट डिपेंड्स कि ट्रेनर्स की स्किल क्या है। द लर्निंग क्लाइमेट, आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है नहीं है, इट डिपेंड्स। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवेलेबल टाइम, कितने टाइम के लिए है, आपके पास कितना समय है। तभी तो आप अगर ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगाएंगे एंड यू हैव जस्ट 1 or 2 hours फॉर योर पर्टिकुलर क्लास, देन दिस इज नॉट गुड। सो टाइम इज अ बिग थिंग टू select the proper technique and resources, what resources you have. So some factors are there that affects adult learning. What are these? Number 1 is psychographics.
योर वैल्यूज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इट डिसाइड्स कि आप क्या सीख सकते हो, किस तरीके से सीख सकते हो। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है, अपनी परिस्थितियां कैसी है, कल्चर, लर्निंग स्टाइल, देयर ओपिनियन, और अदर देन दैट डेमोग्राफिक्स लाइक जेंडर, मेल फीमेल डिफरेंट होता है ना। मेल्स के लिए थोड़ा सा अभी भी ये जो है कह सकते हैं मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो दे आर लाइक दैट। अभी फिर भी चीजें काफी खत्म हो चुकी हैं। एज, रेस है ना, जाति जिसे हम कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी है, अब जिसके पास खाने को नहीं होगा वो पढ़ने की कैसे सोच सकता है। वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, इट डिपेंड्स, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई नहीं है, इट डिपेंड्स। एप्टीट्यूड कैसा है, जॉब कैटेगरी क्या है, एंड देयर मोटिवेशन। So these are the factors which affect adult learning. And how can we create and maintain positive learning environment? So for adult learners, आपको ये समझना होगा कि what learners want from you, उनकी needs क्या है। सेंस ऑफ ऑर्डर क्रिएट करना होगा। स्टूडेंट्स को ग्रीट करें डोर पे हर दिन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें खड़े होकर गुड मॉर्निंग करें, यू कैन से हाय सिंपली, एंड लेट स्टूडेंट्स गेट टू नो यू। आपके स्टूडेंट्स आपको जाने, एंड गेट टू नो योर स्टूडेंट्स, आप भी अपने स्टूडेंट्स को जाने। कंट्रोलिंग अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि एडल्ट्स का जो माइंडसेट है, दे वांट टू कंट्रोल, उनको लगता है वो सही है ना। तो एडल्ट्स आर लाइक दे आर रीजनेबल, वो समझते हैं, दे वांट अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, है ना। सो उनके साथ कंट्रोलिंग नॉट पॉसिबल, सो बी रीजनेबल विद देम, अवॉइड जजिंग। ये तो हमें नॉर्मली भी करना चाहिए विद एवरीवन, नॉट विद एडल्ट लर्नर्स, सो अवॉइड जजिंग। एम्प्लॉय क्लास बिल्डिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करिए, ग्रुप एक्टिविटीज भी करिए। बी वल्नरेबल, तो वल्नरेबल का मतलब होता है गेट रेडी टू अटैक्ड, है ना। तो आप उनके क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहिए। सेलिब्रेट सक्सेस, हाँ, अपने लर्नर्स की सक्सेस सेलिब्रेट करने की आदत डालिए। So these are the something with which you can maintain and you can create positive learning environment. So we have studied assumptions, their characteristics, methods and techniques for the adult learners. So adult learners के साथ हमेशा ऐसा रहता है, वो हमेशा जानना चाहते हैं कि वो जो सीख रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, और अगर वो नहीं सीखेंगे तो उसके नुकसान क्या है ना। और they need to take control in their learning, वो तो रीजनेबल बात करते हैं ना। आपको कंट्रोल नहीं दे सकते, खुद भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके कंट्रोल में भी तो नहीं रहेंगे ना, एडल्ट लर्नर्स है। सो लर्निंग नीड्स टू ड्रॉ ऑन द लर्नर्स ओन एक्सपीरियंस, एंड एडल्ट लर्निंग इज लाइफ सेंटर्ड एंड इट फोकसेस ऑन टास्क एंड प्रॉब्लम्स रादर देन सब्जेक्ट। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, आपको पता है, रादर देन कंटेंट सेंटर्ड। एंड the motivation is the most important thing. Learners should have motivation to learn. So this is an intrinsic factor. Thank you.